Hello students, this is your next session which is based on Tinkercad platform. As we have discussed yesterday also about Tinkercad, the use of Tinkercad platform. So today I'm going to tell you some more points about Tinkercad. It means in today's session we will discuss the use of tools which are available on our Tinkercad platform, right? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिंकरकैड के जितने भी टूल्स हैं उनका कैसे यूज करेंगे. So before that, I'm going to tell you one more thing once again, how we can open Tinkercad. So this is the very simple process. Firstly, you have to type tinkercad.com on any browser which are available on your systems, like this, tinkercad.com. जैसे ही आप tinkercad.com अपने गूगल पर, क्रोम पर, जो भी आपका ब्राउजर है जिसको भी आप यूज कर रहे हैं, उस पर जैसे ही टाइप करेंगे यू विल रिसीव योर मेन डैशबोर्ड. व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द साइन अप प्रोसेस, राइट? आपको लास्ट क्लास में सिखाया गया था हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट ऑन द टिंकरकैड डैशबोर्ड. तो जब आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके लिए आपको बार बार साइन अप प्रोसेस के थ्रू जाने की नीड नहीं होगी. ये डायरेक्टली आपको क्या करेगा, आपको डैशबोर्ड पर पहुंचाएगा. जैसे ही आप गूगल पर या किसी भी वेब ब्राउजर पर आप क्या करते हैं, tinkercad.com टाइप करते हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फ्रेश फाइल फॉर doing some work on the Tinkercad. So here's a button. When you click on that, you will receive a small kind of list in which 3 options are available. As you can see, 3D and design. So you have to pick this one for 3D object designing. Just click on first icon, 3D design. When you click on this first icon, you will receive that kind of interface in front of you, which is visible on your screen right now. So today we will discuss how we can insert any basic shape on work plane area, right? As you can see on the right side, आप अपने right side में देख सकते हैं, here is the option. When you click on this, you will receive so many options and so many type of shapes, right? Like basic shapes, design starters, creatures and characters, vehicles and machines, structures and scenery, hardware, electronics. So many types of data are available. But for 3D object designing, you have to choose shapes, basic shapes, right? So firstly, you have to choose basic shapes and you will receive that kind of shapes on the screen, right? Like cylinder, sphere, cone, pyramid and so on. बहुत सारी ऐसी images हैं जिनके हेल्प से आप अपने shapes create कर सकते हैं. कोई भी आप object create कर सकते हैं, correct? Even if you want to write any text on the given object, जैसे कि हम कोई बॉटल बना रहे हैं तो हम बॉटल पर, फॉर एग्जांपल मैं अपने नेम की बॉटल क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उस बॉटल पर मेरा नेम भी एम्बेड होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए. सो फॉर दैट वी कैन यूज टेक्स्ट, राइट? आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट one by one. So firstly, I will go with how we can insert any kind of object on the work plane. So the process is very, very simple. Like if I want to choose a sphere, right? Or if I want to choose this box, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? Firstly, click on the given box and after that drag your mouse. There are 2 steps. Firstly, select the given object, select the desired object, right? And after that drag your mouse like this.
on the work plane area and just click on anywhere where you want to place the same box or same object, right? So in this way you can insert or add any object on the work plane area. And as you can see here, small squares are available, right? These are the squares. When you click on this, you can see length and breadth are available. When I click on this box, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ दोनों चीजें दिखाई देंगी. अगर मैं किसी भी बॉक्स की लेंथ को या ब्रेथ को बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं दो तरीके से यहाँ पर कर सकती हूँ. I can enhance the box by dragging the mouse, right? Or I can type here the dimensions in this box. Like this is 15 and I'm writing here 30. Now you can see the difference when I press the enter key from the keyboard, right? It has changed. तो आप दोनों तरीके से इसके डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, either by writing the dimension or by enhancing the figure, dragging the figure, right? चाहे आप उसको ड्रैग कर लें, चाहे आप उसके डायमेंशन को टाइप करके राइट करके उस पर चेंज कर सकते हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि दिस इज फॉर लेंथ एंड दिस इज फॉर ब्रेथ, बट इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, तो हम हाइट कहां से इंक्रीज करेंगे? यू कैन सी वन मोर डायमेंशन, वन मोर स्क्वायर दैट इज in center. By the help of this you can increase the height or decrease the height, right? दोनों तरीके से कर सकते हैं. ये भी सेम, या तो आप ड्रैग करें या फिर आप राइट करें डायमेंशंस. whatever way you want to choose, you can go with this, right? So this is the way you can increase the height or increase the length and breadth like this, right? And one more option is available, this one. So this is to rotate your figure, right? If you want to rotate, मतलब अगर आप इसको डाउन और अप करना चाहते हैं, जैसे कि आपका जो वर्क प्लेन एरिया है, आप देख रहे हैं आपकी फिगर डाउन जा रही है आपके वर्क प्लेन से और यहाँ पर अप आ रही है, तो ये जो सेंटर कोन है ये आपको हेल्प करेगा इसमें. और ये जो आपका एरो है, दिस इज फॉर रोटेटिंग योर फिगर. अगर आप किसी भी डायरेक्शन में उसको रोटेट करना चाहते हैं, यू कैन गो विद दिस लाइक दिस. अगर आप उसको बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद दीज एरोज, राइट? और अगर आप कोन शेप का यूज करेंगे तो वो वर्क प्लेन के ऊपर और नीचे, या वर्क प्लेन भी कह सकते हैं. आप किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर अप एंड डाउन सेट करना चाहते हैं तो आप कोन की हेल्प से कर सकते हैं, इस तरीके से. ठीक है? सो दिस इज द यूज ऑफ डायमेंशंस. Now when I click on any object, like I'm having two kind of object on my work plane area like this. One is box and another one is sphere, right? When I select any object, it will provide us one list जिसमें क्या होगा कि आपकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. लाइक दिस इज स्फेयर, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के ऑप्शंस होंगे कि आप वो स्फेयर को सॉलिड यूज करना चाहते हैं या होल यूज करना चाहते हैं. सॉलिड जिसमें आप कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हैं. होल कुछ इस तरीके की फिगर होती है जो ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अगर आप कहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से. आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं. दिस इज सॉलिड इमेज और दिस वन इज होल इमेज, ट्रांसपेरेंट इमेज, राइट? यहाँ पर आपके कुछ यहाँ पे इसके स्टेप्स दिए गए हैं, कितना आप उसको मेंटेन करना है, आपको उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल, वो आप कर सकते हैं. सिमिलरली व्हेन यू क्लिक ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट, अगेन आपके पास वही आ जाएगा, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, स्टेप्स और रेडियस. आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं. आप देख रहे हैं
आप इसको जैसे ही अप एंड डाउन करेंगे तो ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है कि आप अगर डायमेंशंस राइट करके नहीं करना चाहते, ड्रैग करके नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी बॉक्स से। दिस इज टू हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं, यू कैन गो विद दिस एंड हियर इज द ऑप्शन टू शो ऑल। जैसे ही आप शो ऑल पर करेंगे, आपके जितने भी आपने ऑब्जेक्ट वर्क प्लेन एरिया में इंसर्ट किए हैं वो वापस से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर टाइम अगर आप करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड, आप यूज कर सकते हैं हाइड ऑप्शन, ठीक है। लॉक एडिटिंग, समटाइम क्या होता है, एडिट करते हुए कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है कि चीजें अपने आप डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। जब हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसका एडिटिंग लॉक कर देते हैं। लाइक अगर हम मैं इस पे कुछ भी टच करूंगी तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। अगर मैं इसको टच कर रही हूँ तो ये देखो इसकी मूवमेंट हो रही है, इसका डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, राइट। बट जैसे ही मैं रेड बॉक्स पर क्लिक करती हूँ, नथिंग इज हैपेंड, कुछ नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इसकी जो एडिटिंग है वो लॉक हो चुकी है फॉर सम टाइम, जिससे आपके डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और आप अगर उसको वापस से अनलॉक करना चाहते हैं ड्यूरिंग द डिजाइनिंग, यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ अनलॉक एडिटिंग। ये देखिए डायमेंशंस ओपन हो गई अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो यूज हुआ हमारा कैसे हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे, उसके डायमेंशंस कैसे सेट करेंगे, ठीक है। उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, वी हैव अ कलर पैलेट ऑल्सो। when we click on this solid option in center, we will receive a complete color palette. By the help of this color palette, we can change many colors to the object. Like if I want to use yellow color, I can do easily by the help of color palette, right? So today I am going to tell you one more part. As you can see on the left side, some options are available, some tools are available. तो मैं आज उसका यूज भी आपको बताऊंगी, and later on we will discuss this side tools uses, right? And then we will discuss how we can design any particular object on Tinkercad. पर जब तक हमें टूल्स का यूज नहीं पता होगा तो हम कोई भी डिजाइनिंग इजीली नहीं बना सकते हैं, करेक्ट। तो आपका सबसे पहला पॉइंट है कॉपी। लाइक इफ आई वांट टू क्रिएट द सेम कॉपी of any object during the designing, so no need to search it again on the basic shapes category। हमें वापस से बेसिक शेप कैटेगरी में जा करके उसको सर्च आउट करके लेने की नीड नहीं है। वी कैन डायरेक्टली डू अ कॉपी by the help of selection, right? So firstly you have to select the given object and then just click on copy। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, आप ये सोचेंगे कि जैसे ही हम कॉपी टूल को यूज करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट का कॉपी हो जाएगा। नो, जैसे हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं, फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट इट, देन वी हैव टू कॉपी इट एंड देन वी विल डू पेस्ट, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना होता है। फर्स्टली वी विल सेलेक्ट and then we will choose copy option, and after that we have one more option that is paste। so we will do that। जैसे ही हम करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, as you can see, right? देख पा रहे हैं? तो ये इस तरीके से आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसकी शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल है। बाय द हेल्प ऑफ Control C and Control V, you can do the same task। Firstly, you have to select any object, like I am going to select this whole sphere. Just click on that and then I can use Control plus C from the keyboard and then Control plus V from the keyboard। Now you can see the same object is here, right? In this way, I can do the same task. In place of these tools, I can use shortcut keys।
Now I'm going to tell you one more thing, that is the option duplicate and repeat. When I click on that, अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्लिक सेलेक्ट करती हूँ और डुप्लीकेट क्रिएट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्या करना होगा, जस्ट सेलेक्ट इट and after that you have to use duplicate tools, duplicate and repeat tool, and just drag the same object on the other position, right? Firstly you have to select it, then duplicate it, and then move on the other area, तो आपको उसको डुप्लीकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव वन ऑप्शन दैट इज डिलीट। समटाइम हमारा क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, एक्स्ट्रा फिगर हमने ले ली है, एक्स्ट्रा शेप कोई ले लिया है, या एक्स्ट्रा डुप्लीकेट क्रिएट हो गया है, एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट हो गई है, एंड वी वांट टू डिलीट द ऑब्जेक्ट। सो हियर इज द ऑप्शन टू डिलीट इट, जस्ट सेलेक्ट इट एंड जस्ट क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, डिलीट टूल। तो आप देख सकते हैं, आप इजीली अपने वर्क स्पेस एरिया से अपने ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। करेक्ट? So this is the use of delete option, and now I am going to tell you undo and redo option. When I click on this undo option, तो अभी लास्ट मैंने जो ऑब्जेक्ट या लास्ट एक्शन जो मैंने परफॉर्म किया है वो वापस से आ जाएगा, और अगर मैं रीडू करती हूँ तो वो लास्ट सेक्शन वापस से रिपीटेडली आउट हो जाएगा, राइट? जो लास्ट हम परफॉर्म करते हैं वो एक्शन परफॉर्म हो पाता है अंडू एंड रीडू की हेल्प से। लाइक अगर मैंने इसको डिलीट किया है अभी और मैं इसको वापस से अंडू करना चाहती हूँ, आई कैन यूज दिस अंडू ऑप्शन। और अगर मैं वापस से, मुझे नहीं चाहिए था, मेरे को डिलीट ही रखना था, तो आई कैन गो विद दिस रीडू ऑप्शन। सो दीज आर द यूजेस ऑफ लेफ्ट साइड टूल्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, एंड आई एम गोइंग टू शो यू वन थिंग कि हम किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टिंकरकैड platform, right? And later on I will tell you other component uses. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड पर जा रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ टिंकरकैड आइकन। जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम कनेक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ अपने बने हुए मटेरियल की नीड होती है, अपने बने हुए ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है। दैट टाइम वी कैन इजीली क्रिएट डिजाइंस एंड वी कैन टेक प्रिंट ऑल्सो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो ये कुछ मेरे बनाए हुए जो भी, मतलब अभी एक छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ फाइल। सबने देखा है ना ये रेंच, सब अवेयर है रेंच से, ठीक है? रेंच, जिसको इंग्लिश में रेंच बोलते हैं, हिंदी में चाबी बोलते हैं, राइट? तो ये सेम वो है ऑब्जेक्ट जो हमने खुद से डिजाइन किया है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे वो सब आपको बताया जाएगा वन टू वन, राइट? अगर हम किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वी कैन इजीली मेक बाय द हेल्प ऑफ दिस टिंकरकैड प्लेटफॉर्म। तो अभी आप क्या सीख रहे हैं, यूजेस सीख रहे हैं कि कैसे कैसे आपको डिजाइनिंग के टाइम पे टूल्स का यूज कर पाएंगे। जब तक आपको टूल्स का यूज नहीं पता होगा, यू कैन नॉट मेक दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इजीली। इट इज नॉट अ प्री डिफाइंड और प्री मेड स्ट्रक्चर। इसको हमने इन्हीं शेप्स के थ्रू बनाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर है जैसा आप मार्केट में देखते हैं।
तो अगर आप इसको बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, फिर आप इसको 3D प्रिंटर की हेल्प से सेम पार्ट हार्डवेयर आप अपने हाथ में ले सकते हैं, राइट? आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू।